बिल्कुल हालात वर्स्ट है वहाँ पर। वहाँ बिल्कुल बम्बारमेंट हो रही है, रुक रुक के, रात को तो ज़्यादा हो रही है। वो बिल्कुल ना हम कुछ खाते, हमें पता ही नहीं हम क्या खाते, तो उनकी बात ही नहीं। Anxiety has gripped the parents of Hafsa, an Indian student pursuing her medical studies in Tehran ever since the conflict between Iran and Israel escalated. The youngster from Srinagar, in the few video calls she has managed to make to her family since the conflict started, says she, along with the hundreds of other students there, are living in fear, surrounded by the constant sounds of bombs and missiles falling nearby. आप कहाँ पर हैं इस वक्त? तेहरान में। अच्छा, तेहरान में आप। तो क्या सिचुएशन क्या है वहाँ पर? इट इज रियली बैड है। हमें रोज धमाके पड़ रहे और रह रहे थे। दैट वाज द फर्स्ट अटैक बाय इजराइल देयर एंड इट्स रियली डिफिकल्ट बीइंग हियर। इट्स रियली डिफिकल्ट। हमें ये ऐसे बोला गया कि यू हैव टू बी इन द शेल्टर्स, बेसमेंट्स एंड मेट्रोस। वी आर रियली स्कैर्ड हियर। Hearing their panic stricken daughter describe the situation in Tehran, Rehana and Mohammed have appealed to the Indian government to take immediate steps for her safe evacuation from the conflict zone. पिछले फ्राइडे से मतलब थोड़ा बहुत वो कर रहे थे सरवाइव अपने हिसाब से, हमें ही बोल रहे थे कि आप लोग ठीक रहिए, हम ओके है वो ये। लेकिन पिछले 24 घंटे से वो ट्रॉमाटाइज हो रहे हैं, वहाँ पे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं ड्यू टू सिचुएशन। वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो अब वो कंटिन्यूसली एम्बेसी से कांटेक्ट कर रहे हैं या अपनी अथॉरिटी से, तो मतलब उतना रेस्पॉन्स वहाँ से अभी नहीं है। तो ना कुछ इवैक्यूएशन के बारे में तो एम्बेसी कुछ नहीं अभी बोल रही है। अभी हम परेशान हैं, जो हालात वहाँ पे हुए हैं उसकी वजह से हम चाहते हैं उनको इवैक्यूएट किया जाए जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल। तो आपकी बात होती रहती है? पूरा नेटवर्क बिल्कुल पोर है, बात होती है कटती है, होती है कटती है। वो परेशान बहुत हो रहे हैं वहाँ पर, उनको कोई नेटवर्क का भी इशू है, खाने का भी इशू है। तो वो डर के मारे जो ही ब्लास्ट होता है वो ऊपर वाली मंजिल से बेसमेंट में बैठते हैं। Like Hafsa's parents, family members of other Indian students from Srinagar studying in Iran are also living in fear and anxiety. Mohammad Ayub Dar too has appealed to the government to take immediate steps to evacuate the stranded students in Tehran. सिचुएशन बहुत ख़राब है वहाँ पर। आप तो मीडिया के थ्रू अभी उतना मीडिया यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो सिचुएशन बहुत ख़राब है वहाँ पर, क्योंकि बाहर जो भी हमले हो रहे अभी नहीं रुक रहे। मॉर्निंग के टाइम में अगर दिन को हम वहाँ पर देखेंगे, जितना मैंने कांटेक्ट वहाँ से किया है बच्चों के साथ या फ्रेंड्स के साथ, दिन में उतना नहीं हो रहा है। शाम के जब 6-7 बज रहे हैं वहाँ से दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ के गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इन बच्चों की लाइफ सेव कीजिए। Recalling the safe return of Indian students from Ukraine during the early days of the Russia-Ukraine conflict, parents of students stranded in Iran are urging the government to take similar measures. Some parents say they are relieved that the process of moving the students out to safer zones has started. I was approached by Indian Embassy, Tehran. I'm very thankful to them. They were not approaching me only. They were giving, pacifying every parent that nothing to worry. They did a commendable job, believe me. They did wonderful job over there. Our country is having a great past experiences, like Operation Ganga was carried in Ukraine. 18,000 were airlifted from there. So we have full hope in our country's leadership. We have full hope in our foreign minister. They will definitely, they are on the job and they will do the job. And I'm very thankful to them. Today I received the news that children are being relocated. And that's much little bit pacify ho gaya. A consultant who helped the Srinagar-based students get admission in Tehran says he is in constant touch with them. He urged their parents not to panic. आपको पता है कि भी सिचुएशंस जो हैं थोड़े से वहाँ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशंस हैं बच्चों के साथ, जहाँ तक हमारा कांटेक्ट है, एवरीथिंग इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नॉर्मल। खासकर मैं कश्मीरी बच्चों की बात करूँगा, वो बहुत सेफ़ हैं। हाँ, ये जंग है, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मुश्किलात ना आए, वो तो हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी वाली बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी सेफ़, और उनके साथ कोई ऐसा कुछ है नहीं कि हमें कंसर्न होने की ज़रूरत है।
Meanwhile, some parents and local residents staged a protest in Baramulla on Monday, urging the government to take immediate action to address the issue. हम समझते हैं ये कितने परेशान होंगे क्योंकि इनके जो बच्चे हैं वो ईरान में फंसे हैं और हमारी मौदवाना गुजारिश रहेगी एलजी साहब से कि वो इसको ऑन प्रायोरिटी टेकअप करे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जल्द जो हमारे बच्चे हैं वो वापस आएँ। अभी चूँकि जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है ईरान में, जिसमें कि रिसेंटली वहाँ पे इसराइल के द्वारा वहाँ पे अटैक्स हुए हैं और उसका काउंटर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारे बच्चे वहाँ पे हैं जो फंसे हुए हैं, बिकॉज ये एयर स्पेस वहाँ पे जो है वो अभी बंद है, जिसकी वजह से वो घर वापस नहीं आ पा रहे हैं। आज हम यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आज रिक्वेस्ट करने आए हैं यहाँ पे कि वो हमारे बच्चों को किसी भी तरह से वहाँ से इवैक्यूएट करे, इससे पहले कि सिचुएशन ज़्यादा वर्सन हो जाए। In what could come as some relief to the parents of the students studying in Iran, the Ministry of External Affairs on Monday said the Indian Embassy in Tehran was continuously monitoring the security situation and engaging with the students to ensure their safety while also relocating them to safer places in some cases.